सत श्रीकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। माय नेम इज अजय सिडाना, सिलेक्टेड SIPO इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि रेस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते जो मैगा सैशनस लिते जा रहे हैं स्पैशली फॉर नैब तहसीलदार एग्जाम। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। फस्ट लैक्चर ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ। ओके है जी। सो रिवीजन ऑफ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर पार्ट नंबर 2 लेके ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀing ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀing ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ MCQs ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। ये अपना पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। 1 मिनट ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾर्ट नंबर 2 ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾर्ट नंबर 1 ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਈਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਪਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇਨ ਪਾਸਟ 6 ਡੇਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। I mean to say ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੁਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਓਕੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 to 25 ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ। MCQ on various issues like economic, political, science and tech, environment, sports
from past 6 months। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ there will be 40 question, 40 ਮਤਲਬ 40 question ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, 1 to ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੋ A ਜਾਂ B ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ A ਜਾਂ B ਚੋਂ ਜਾਂ B ਜਾਂ C ਚੋਂ ਜਾਂ C ਜਾਂ D ਚੋਂ ਜਾਂ D ਜਾਂ A ਚੋਂ डिफरेंस कढ़ना यही तो थोड़ा एग्जाम क्लीयर करवांदा है। जो जेडे स्टूडेंट्स मतलब इत्थों तक जेडे कई बारी मेरे नाल गल हुंदी है तां वो कहंदे हैं कि सर असीं तैयारी दा वधिया तरीके नाल कर रहे हैं, पिछले 6 महीने साल 2 सालों तो पढ़ रहे हैं लेकिन सानू दिक्कत आ रही है। मैं पहले ही समझ जाना कि दिक्कत ये आ रही है कि तुसीं दो ऑप्शनां च कन्फ्यूज हो जन्ने हो। तो वो कहंदे कि बिल्कुल इहदे नाल की है कि मोर दैन 75% स्टूडेंट इत्थे अड़के हुए है। उनका रीजन की है, उनका रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। तुसी पढ़ तो लिया लेकिन उस पढ़न नाल तुसी इन्ने कंफ्यूज हो गए कि तुसी उनकी रिवीजन नहीं प्रॉपर की, तुसी उनकी प्रैक्टिस नहीं प्रॉपर की। सो जो कुछ भी तुसी पढ़ते हो मैं हमेशा कहना कि जो कुछ भी तुसी मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे तुसी पढ़िया वीक दे विच 1 या 2 दिन रिवीजन दे रखो। जो भी कुछ तुसी पढ़िया है उन्होंने वार-वार रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है जी। चलो जिवें मैं दस रहा सीगा कि पेपर के उपर 1 तो लैके 40 जिहड़ा सीरीयल नंबर लिखो, मेरे आंसर देने तो पहला प्रॉपर तरीके नाल तुसीं आप दा आंसर उत्थे लिखना है ते आंसर उन्होंने चैक करना है ते जिहड़ी डिटेल है उन्होंने प्रॉपर तरीके नाल समझनी है। ठीक है जी। चलो ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए क्वेश्चन नंबर 1 नूं मैं थोड़ी स्क्रीन ते रखदा। हुण तो अगला 1 घंटा आपां लगातार जिहड़ा है 40 क्वेश्चनस आपां 1 बाय 1 करांगे। सो पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन ते, पर उस तो पहला मैं बोर्ड नूं क्लीयर कर ला ताकि क्वेश्चन जिहड़ा है मेरे पिक दे पीछे ना लुक जे। चलो ते आपां बोर्ड नूं क्लीयर कीता। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी स्क्रीन ते एरिया। Recently the Hunar Haat based on the theme of Vocal for Local was inaugurated in Mumbai. It was which edition of this event in India? 39th, 40th, 41st या 43rd? की कह रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कि रीसेंट दे विच इंडिया दे विच हुनर हाट दी इनोग्रेशन की गई। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥੀਮ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ। ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦਾ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦਾ? ਸੋ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40th। सो हुनर हाट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनकी पिक देखिए तो इस तरीके का हुनर हाट का एक एग्जीबिशन सीगा जिहड़ा इस बारी मुंबई च होया। टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ते होर भी कुछ मिनिस्ट्रियां नाल मिलके की करदियां, नाम तो ही समझो हुनर हाट। हुनर मतलब स्किल, हस्तकला, यानी कि हत्थां नाल बने हुए आर्टी क्राफ्ट, कुछ पेंटिंग्स, कुछ बर्तन या खिलौने इस तरीके दे जिहड़े है जो कि कुछ ट्राइबल कम्यूनिटीज द्वारा बनाए जाते हैं या माइनॉरिटी कम्यूनिटी द्वारा बनाए जाते हैं। उन्हां दा टाइम टू टाइम ते जगह टू जगह वेरी करके डिफरेंट जगह ते एग्जीबिशन लगाया जाता है ताकि उन्हां दी मार्केटिंग की जा सके बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ते इहदी जिहड़ी थीम रहिंदी है पिछले कुछ टाइम तो रह रही है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल की हुंदा है? जिवें मोदी जी ने कहा सी मेड इन इंडिया। कई बारी हुंदा है ना आपां पंजाबी दा खास करके कहने आ भी आ चीज वलैती हैगी है, ये चीज फॉरन दी हैगी है ना, ये चीज इंपोर्टेड हैगी है। उन्होंने कहा कि जिहड़ी अपनी लोकल चीज़ां है ना उन्हां नूं अपनाउण ते तुसी जिहड़ा है वो शर्म ना महसूस करो। वोकल फॉर लोकल यानी कि जिहड़ा अपनी लोकल है ना उनकी भी प्रेज करो ताकि अपनी जिहड़ी इकोनॉमी है वो वधे। जिन्नी ज्यादा आपां लोकल मेड चीज़ां जिहड़ियां है वो यूज करांगे उहदे नाल इंडिया का पैसा इंडिया च ही रहेगा, इंडिया की ही डेवलपमेंट ते यूज आएगा। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज वोकल फॉर लोकल, जिहदे नाल मेड इन इंडिया नूं बढ़ावा मिलता है। सो उस करके हुनर हाट टाइम टू टाइम लगाया जाता है। अप्रैल मंथ दे विच ये मुंबई दे विच लगाया गया। 40th इहदा एडिशन सीगा। ओके है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ते चलदे हां। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WPI एंड CPI। ठीक है जी। वैसे अगर एग्जाम दे विच आएगा तो फुल फॉर्म लिखी होगी, मैं फुल फॉर्म दस देना।
ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ WPO is published by CSO and CPI is published by Office of Economic Advisor। ठीक है, CSO की फुल फॉर्म दस देना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है होलसेल प्राइस इंडेक्स takes into account goods only whereas CPI includes both goods and services। choose the correct statement or statements। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ। 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 no 2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ WPI ਤੇ CPI ਬਾਰੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 2 only। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੋਲਸੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਟ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਡੋਗੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਕੈਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ WPI ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CPI ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। CPI ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਾਸਤੇ CPI ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ WPI ਤੇ CPI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। WPO ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WPO ਕਰਤਾ ਮੈਂ, WPI ਹੈ। WPI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ CPI ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CSO ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ WPI ਤੇ CPI ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਕਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਮਾਊਂਟ to the average change in the price of commodity at the wholesale level। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ CPI ਕੀ ਹੈ ਰਿਟੇਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ WPI ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਹ CPI ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ MOSPI ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। MOSPI ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੀ CPI ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। CPI ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ, CPI ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
both ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਡਿਟੇਲ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ WPI, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ CPI, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਕੇ WPI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CPI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ डिस्कस करते हैं। ऐसे तरीके नाल साइंस एंड टेक दियां करते हैं, इस तरीके नाल पॉलिटी दियां करते हैं, इस तरीके नाल स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर करते हैं। सो ये सारी चीज है, तुसी भी ऐसे तरीके नाल ही सारे जिहड़े है वो करया करो, सैगमेंट वाइज चीज़ां नूं पढ़ो ते करंट अफेयर दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां आ रही हैं उन्हां दी कंप्लीट ते डीप नॉलेज जिहड़ी है वो लैण दी कोशिश करो, तां ही तुहानूं एग्जाम दे विच प्रॉपर तरीके दा जिहड़ा बेनीफिट है वो मिलेगा। यानी कि एग्जाम च प्रॉपर तरीके नाल तुसी क्वेश्चन नूं सॉल्व कर पाओगे ते तुसी समझ पाओगे कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन कित्थों बनाया है। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? मोजाम्बिक, तंजानिया, इक्वाडोर या कजाकिस्तान? ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? मोजाम्बिक है, तंजानिया है, इक्वेडोर है या कजाकिस्तान है? तो वो कंट्री है दोस्तों, द राइट आंसर इज सी, दैट इज इक्वेडोर। इक्वेडोर वो कंट्री है जिन्हें पहली कंट्री बनी है जिन्हें इस तरह के राइट दिते है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम च आने पूरे चांस है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली अ रिनोन्ड सिंगर नेम्ड मिस्टर प्रफुल्ला कर passed away. He was related to singing in which language? A कन्नड़, B मलयालम, C भोजपुरी या D उड़िया? सो रीसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? लैंग्वेज पूछी गई है थोड़े कोलों, ये ओब्यूचरी नाल रिलेटेड क्वेश्चन है। ओब्यूचरी मतलब रीसेंट दे विच जिहड़े देहांत होंदे है वो इंपोर्टेंट होंदे है। अगर किसी रिनोन्ड पर्सन का देहांत होया है तो उहदे नाल रिलेट करता होया क्वेश्चन, जिस तरह ये आ गया कि उन्हां दी आर्ट फॉर्म किहड़ी सीगी, या फिर ऐसे आर्ट फॉर्म दसती तो लैंग्वेज किहड़ी सीगी, या फिर उन्होंने कोई अवॉर्ड मिले है तो वो अवॉर्ड किहड़े ईयर मिले है, किहड़े अवॉर्ड उन्होंने मिले है, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी। इस तरीके के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंदे है। जिवें कि आ क्वेश्चन है कि जिहड़े सिंगर है प्रफुल्ला कर, एक किहड़ी लैंग्वेज नाल रिलेट करते सी, किहड़ी भाषा के सिंगर सीगे? कन्नड़ दे सी, मलयालम दे, भोजपुरी दे या उड़िया दे? सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज उड़िया। सो क्वेश्चन क्यों बनया? क्वेश्चन ऐस करके बनया, द हिंदू दी न्यूज़ सीगी नोटेड उड़िया सिंगर प्रफुल्ला कर पासिस अवे। तो ये न्यूज़ सीगी दोस्तों, जिहड़ी न्यूज़ नूं आपां डिटेल च एनालिसिस कीता सी बैच दे विच, ऐप दे विच। सो इत्थे जिहड़ा है क्वेश्चन बनिया कि इस तरीके के क्वेश्चन न्यूज़ पेपर्स चों डायरैक्टली तुहाडे एग्जाम दे विच पूछे हैं। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 ते चलते हैं। रिसेंटली FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हैडक्वार्टर है रोम इटली दे विच, एंड आर्बर डे फाउंडेशन recognized two of the Indian cities as World Tree Cities. Which of the following are those cities? A. Mumbai and Hyderabad, B. Mumbai and Bengaluru, C. Bengaluru and Hyderabad या D. Delhi and Mumbai? क्वेश्चन कह रहे हैं कि रीसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ਤੇ ਆਰਬਰ ਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਟਰੀ ਸਿਟੀਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? सिर्फ ये दो सिटीज नहीं सी, पूरे वर्ल्ड दे विच काफ़ी सिटीज सीगियां, लेकिन इंडिया चो दो सिटीज सिलेक्ट होईयां सीगियां। वो दो सिटीज थोड़े तो पूछियां गई हैं कि किहड़ियां सीगियां। मुंबई एंड हैदराबाद सी, मुंबई एंड बेंगलुरु, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई। 5 सेकंड्स है थोड़े कोलों, 5 4 3 2 1। द राइट आंसर इज ए, दैट इज मुंबई एंड हैदराबाद। ये दो सिटीज इंडिया चो चुनिया गई एज वर्ल्ड ट्री सिटीज। ये 2021 ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हैदराबाद ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ हैदराबाद ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਟਰੀ ਸਿਟੀਜ਼। ओके दोस्तों, 5 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करदा 5 ਦੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, नहीं तो 5 ਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ही सही ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी, चलिए अगे फिर 6वें क्वेश्चन वाल ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 6th एरिया, द क्रिकेटर नेम्ड एज हामिश बेनेट
announced retirement from international cricket recently. He belongs to which country's cricket team? England, Australia, New Zealand, South Africa. एक क्रिकेटर है जिन्हों का नाम है हैमिश बेनेट ने रीसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ। ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਮਿਸ਼ ਬੈਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਹੈਮਿਸ਼ ਬੈਨੇਟ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Consider the following statement regarding World Heritage Day. Very important. First statement है, it is observed every year on April 18th. Second statement है, the theme for the year 2022 was chosen as Heritage and Cities. Choose the correct statement or statements. One only, two only, both one and two, neither one, no two. World Heritage Day बारे दो स्टेटमेंटां दित्तियां गईयां। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਆਹ ਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੋਨ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼। तो दसो जी की अंदर सही जवाब है? The right answer to this question is one only, A, one only। क्यों one only जी? पहली जी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, हर साल 18 अप्रैल नूं की हुंदा है वर्ल्ड हैरीटेज डे। दूजी स्टेटमेंट क्यों गलत है? 2022 की जी थीम है वो सीगी हैरीटेज एंड क्लाइमेट, ना कि सिटीज। हैरीटेज एंड क्लाइमेट हाँ सीगी, दैट्स वाई ए होगी गलत। वन ओनली विल बी दी राइट आंसर। क्यों क्वेश्चन बनया? क्वेश्चन द हिंदू दे विच न्यूज़ आई सीगी फ्री एंट्री टुडे एट ASI मोनूमेंट्स। ASI की है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिहड़ा डिपार्टमेंट है उनके जिन्ने भी मोनूमेंट हैगे है, किन्ने मोनूमेंट है इंडिया दे विच 3693। सारे मोनूमेंट्स दे विच 18 अप्रैल नूं एंट्री फ्री की गई सी। फिर चाहे वो लाल किला होवे या जो भी इस तरह के हैगे है उदों सारे फ्री सीगे। किहड़े दिन एंट्री फ्री करते हैं? एंट्री फ्री करते हैं दोस्तों 3 दिन, यानी कि किहड़ा हुंदा है? एक तां हुंदी है 8 मार्च जो इंटरनेशनल वीमेन डे हुंदा है, उस दिन भी एंट्री फ्री करते हैं। फिर वर्ल्ड हैरीटेज डे तां हुंदा है 18 अप्रैल नूं, लेकिन वर्ल्ड हैरीटेज वीक सैलीब्रेशन हुंदी है 19 नवंबर तो, उदों भी एंट्री फ्री करते हैं। ठीक है, सो ये चीज तुहानूं आनी चाहिए। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इत्थे आ देख लेना हैरीटेज एंड क्लाइमेट ये इहदी थीम सीगी। कदों तो होण लग गया ये सैलीब्रेट होण लग गया 1983। चलो अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 वाल। ये होर डिटेल दे रखी है मैं इत्थे होर दस देना। जिहड़ा है वर्ल्ड हैरीटेज की अगर आपां गल करिए तो इंडिया दे विच कितनियां वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स हैगियां? WHS वर्ल्ड हैरीटेज साइट हैगियां 40 वर्ल्ड हैरीटेज साइट हैगियां। रीसेंट दे विच जिहड़ियां डिक्लेयर कीतियां गईयां वो इंपोर्टेंट होंदियां, जिवें कि 38 सीगी जयपुर दी पिंक सिटी, 39 सीगी ककातिया टेंपल जिन्होंने रामप्पा टेंपल भी कहते हैं तेलंगाना दे विच हैगा। फिर 40th जी साइट है वो है ढोलावीरा दी हड़प्पन सिटी ऑफ ढोलावीरा जी की गुजरात दे विच है, ढोलावीरा गुजरात। ये अपनी 40th वर्ल्ड हैरीटेज साइट सीगी बाय यूनेस्को। ठीक है जी, चलो नंबरिंग नहीं आई इत्थे। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 with reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? First, it is spread over 2 districts. Second, there is no human habitation inside the park. Statement number 3,
It is one of the natural habitats of great Indian bustard. Select the correct answer using the code below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये दो जिलियां दे विच फैलिया होया है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि नो ह्यूमन हैबिटेशन हैगा पार्क दे विच। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिहड़ा कि मैं दसन लगा सी किहड़ी कैटेगरी दे विच है, चलो उहनूं बाद च आपां गल करदे हां। उहदा ये नैचुरल हैबिटेट हैगा डेजर्ट नैशनल पार्क। दसो पहली ते दूजी सही है, दूजी ते तीजी सही है, पहली ते तीजी सही है, या पहली दूजी तीजी स्टेटमेंट सही हैगी है? दसो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 2 ਤੇ 3, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड दी पार्क। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ठीक है, मैनू पता लग गया भी सैकेंड स्टेटमेंट गलत है। मैनू तीसरे बारे भी ध्यान नहीं आ रहा भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इत्थे हुंदा है। वैसे तो मैं पढ़िया सीगा, पिछली बारी भी आपां पढ़िया सीगा भी राजस्थान ते गुजरात जिहड़ा है ना वो इनदा मेन हैबिटेट हैगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दा। सो मैनू थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि तीसरी स्टेटमेंट ना थोड़ी जी मैनू सही लग रही है, लेकिन मैनू दूसरी स्टेटमेंट गलत लग रही है। अगर दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो आ भी गलत हो गया, आ भी गलत हो गया ते आ भी गलत हो गया। ओबवियसली आंसर बनिया 3, यही इनदा आंसर है 1 and 3 ओनली। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट किवें सही हो सकती है? देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर आपां इहदी डिटेल पढ़ीए तो डेजर्ट नैशनल पार्क कित्थे हैगा? राजस्थान दे विच है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच आंदा है, जैसलमेर ते बाड़मेर। टोटल एरिया कवर करदा है 162 किलोमीटर स्क्वेयर का एरिया कवर करता है। ठीक है, फिर इहदे विच जिहड़ा ग्लोबली थ्रैटन जिहड़ा एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिहड़ा पक्षी है वो इहदा जिहड़ा मेन या जिहड़ा एनीमल है वो जिहड़ा इहदा मेन जिहड़ा है वो हैबिटेट हैगा। सो अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गल करिए तो आ पक्षी होंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो अगर आप गल करिए तो मेन है गुजरात ते राजस्थान। पिछली बारी आप इनका क्वेश्चन भी किया सीगा। ते कंजरवेशन स्टेटस की गल करिए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी दे विच है IUCN की लिस्ट दे। ओके है जी, चलिए अगे। आई होप वधिया लग रहा होगा तुहानूं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वाल नूं चलदे हां। साजन प्रकाश इज एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ए स्विमिंग, बी बॉक्सिंग, सी वेटलिफ्टिंग या डी वुशू? साजन प्रकाश इंडिया के प्लेयर हैगे है, किहड़ी गेम नाल किहड़े स्पोर्ट नाल रिलेट करदे है? देखने नूं बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है, पर देखो तुहानूं सारिआं नूं आंदा है या नहीं आंदा। साजन प्रकाश स्विमिंग नाल रिलेट करदे है, बॉक्सिंग नाल रिलेट करदे है, वेट लिफ्टिंग नाल या वुशू नाल? किहड़ी गेम नाल रिलेट करदे है साजन प्रकाश? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्विमिंग। क्यों बनिया ये क्वेश्चन? द हिंदू की न्यूज़ सीगी, साजन प्रकाश बैग्स बटरफ्लाई गोल्ड। सो बटरफ्लाई टेक्निक होंदी है स्विमिंग दी। सो ये सामने तुसी स्विमिंग करते हुए देख पा रहे हो साजन प्रकाश नूं। देखो जे इंडिया दे विच जेड़े स्पोर्ट्स ग्रूम कर रहे हैं उन्हां बारे क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, चाहे फिर वो आपां ग्रास रूट लेवल ते प्लेयर लभ रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स बारे। कित्थे होनी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ऐतकी
पंचकुला दे विच होनी है जून दे विच, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो डैनिश ओपन दे विच इंडियन स्विमर ने साजन प्रकाश जी ने जिहड़ा है वो उन्होंने जिहड़ा गोल्ड बटरफ्लाई गोल्ड जीत्या। सो इंडिया दे विच स्विमिंग हजे उन्नी पॉपुलर नहीं हैगी है। सो इस तरह का क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम च बन सकता हुंदा है। सो जिस तरह ना देखो न्यूज़ तो आपां किस तरीके नाल क्वेश्चन नूं बिल्ड कीता ये तुसीं देख सकदे हो। ओके है जी, अगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following day world art day is observed globally? 15th of March, 15th of April, 15th of May या 15th of February? वर्ल्ड आर्ट डे, कोई नवा जा दिन, कला दिन भी पूछा जा सकता है। तुसीं ते कह सकते हो सर तुसीं तां कह रहे सी कि गोन आर दोज डेज, जो सिंपली पूछणगे कि किहड़ा दिन काहदे लई है, लेकिन अगर कोई टिपिकल जा दिन है, अगर कोई इस तरीके का दिन है जिन्हों हजे उन्नी रैकोगनीशन नहीं मिली, आने वाले टाइम च रैकोगनीशन मिलेगी या पिछले कुछ दिनों के विच रैकोगनीशन मिली है, तां ओह इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? कदों ऑब्जर्व होंदा है? ये होंदा है दोस्तों 15th ऑफ अप्रैल। अगर डिटेल पढ़नी हो तो इत्थे देख सकते हो, वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15th ऑफ अप्रैल। ये एम्फेसाइज करता है इंपोर्टेंस ऑफ आर्ट दी दैट नर्चर्स क्रिएटिविटी। आर्ट दे नाल की आंदी है? क्रिएटिविटी आंदी है। सो ये जिहड़ा दिन है इनू IAA ने डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ आर्ट, जिहड़ा कि एक NGO है जिहड़ा यूनेस्को दे नाल पार्टनरशिप दे विच काम करता है। पहला जिहड़ा वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया सीगा वो 2012 दे विच मनाया गया सी, 15 अप्रैल 2012, बिकॉज इट इज दी बर्थडे ऑफ लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, जिन्होंने जिहड़े एक फेमस पेंटर सीगे जिन्होंने पेंटिंग बनाई सी मोनालिसा दी। दैट्स वाई 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे होंदा है। तो आप 10 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं दोस्तों। सो किन्ने किन्ने ने 10/10 लिती है हैंड्स, मतलब मैं कहूँगा कि बिल्कुल क्लैप करूंगा उन्होंने वास्ते। सो 10/10 अगर तुसी लै रहे हो तो बहुत ही वधिया थोड़ी तैयारी है जिहड़ी चल रही है। अगर 8 या 9 भी आ रहे हैं तो अच्छी गल है, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिहड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 वाल नूं चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनेक्स 21, PANEX 21। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन एक्सरसाइज अमंग सार्क नेशंस। सेकंड है इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। एक पॉइंट दिता है, एक टॉपिक दिता है पेनेक्स 21। पेनेक्स 21 बारे दो स्टेटमेंटां थोड़े सामने हैगियां। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये सार्क नेशन द्वारा करवाई जाती है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये HADR है। HADR बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। HADR होंदा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि वो वाली एक्सरसाइज जिहड़ी कादे लई होवे, ह्यूमन बीइंग दी हेल्प लई होवे, ह्यूमन बीइंग नू रेस्क्यू करने लई होवे, फिर चाहे भूकंप की स्थिति होवे, सुनामी की स्थिति होवे, बाढ़ की स्थिति होवे, तां उहनू कहंदे आ HADR। तो दसो कि केड़ी स्टेटमेंट सही है केड़ी गलत है अबाउट पेनेक्स, PANEX 21। द राइट आंसर इज 2 ओनली। ये बिल्कुल HADR तो हैगी है, लेकिन ये सार्क नेशन नहीं करवाते, साउथ ईस्ट एशियन नेशन नहीं इनू करवाते। इनू कौन करवाते हैं? इनू करवाते हैं बिम्सटेक, बिम्सटेक नेशन करवाते हैं। बिम्सटेक की है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो है बिम्सटेक। ये जिहड़े किन्ने अलग अलग देशों का समूह है जिन्हें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका ते थाईलैंड आते हैं। बिम्सटेक नेशन उन्होंने ये वाली एक्सरसाइज करवाई सी, HADR एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2021। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर। सेकंड थीम है दी 2021 दी इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। दिसंबर के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन कह रही है कि दो स्टेटमेंट दित्तियां हुई हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2021 बारे। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये 10 दिसंबर को होंदा है, दूजी स्टेटमेंट इहदी थीम दसदी है। सेम है जिस तरीके नाल आपां वर्ल्ड हैरिटेज डे का क्वेश्चन हुणे करके आए हैं, उस तरीके नाल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के क्वेश्चन ते तुहानूं जिहड़ी है वो दो स्टेटमेंटां दित्तियां हुई हैं। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
both 1 and 2 दोनों ही सही हैगियां 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਸੀ। क्वेश्चन नंबर 13 ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। Consider the following statement regarding UNESCO's representative list of intangible cultural heritage ICH of humanity। दो स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ थोड़ा ਜਿਹਾ टिपिकल क्वेश्चन है ध्यान ਨਾਲ समझना है। फर्स्ट है Durga Puja is the first festival in Asia to achieve recognition as UNESCO ICH of humanity। Second question है there are 13 traditions in India recognized by UNESCO as intangible cultural heritage। Choose the correct statement or statements, one only, two only, both 1 and 2, neither one, no two। दसो शाबाश। थोड़ा जिहा टिपिकल क्वेश्चन है ध्यान नाल देख लो 5 सेकंड ले लो इहदा जवाब दिओ। ये दिसंबर ते जनवरी दे नेड़े दा क्वेश्चन हैगा ये, ठीक है। सो इहदे बारे अगर आपां गल करिए दी राइट आंसर इहदा दोस्तों आऊगा 1 ओनली। 1 इहदा जिहड़ा है फर्स्ट है। फर्स्ट जिहड़ी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हैगी है। दुर्गा पूजा जिहड़ा पहला फेस्टिवल बनिया एशिया दा जिन्नू यूनेस्को ने रैकोगनीशन दित्ती है ICH मतलब इंटेंजिबल। इंटेंजिबल की हुंदा है जिन्नू छुआ ना जा सके, है ना, यानी कि कोई मतलब इस तरह की चीज जिहड़ी सिर्फ एक ट्रेडिशन हैगा। तो इंटेंजिबल कल्चरल हैरिटेज का टैग मिले दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल नो, ठीक है। दूसरी जी स्टेटमेंट है गलत है। क्यों गलत है? इहदा रीजन की है? रीजन ये है कि देयर आर 13 नहीं, देयर आर 14। 13 की बजाय आऊगा 14 ट्रेडिशंस इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। 14 जिहड़ा है वो सही आऊगा, 13 जिहड़ा है वो गलत है। 14 विल बी दी राइट आंसर। सो इस तरीके नाल एग्जामिनर तुहानू कंफ्यूज कर सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन ते चलदे हां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्नि P मिसाइल। अग्नि P। फर्स्ट, अग्नि P is a two-stage canistrized solid propellant missile। Second, the surface-to-surface ballistic missile has a range of 1000 to 2000 km। Choose the correct statement or statements, one only, two only, both 1 and 2, neither one, no two। अग्नि P मिसाइल, इत्थे P का मतलब है प्राइम। अग्नि प्राइम जिवें Amazon प्राइम है ना, उवें अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल बारे जिहड़े है वो दो क्वेश्चन तुहाडे सामने हैगे है। अग्नि प्राइम करैक्ट दसने किहड़ी स्टेटमेंट सही है किहड़ी गलत है। अगर आप राइट आंसर की गल करिए तो वो है दोस्तों बोथ 1 and 2, ठीक है जी। बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैगी है। अग्नि P जिहड़ी मिसाइल है वो एक 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड सोलिड प्रोपेलेंट मिसाइल हैगी है जिंदी हुण जिहड़ी रेंज है वो 1000 तो लैके 2000 किलोमीटर हैगी है। जे डिटेल देखनी है तुसीं इत्थे डिटेल भी कर सकते हो। दिस इज द एग्जैक्ट कटिंग ऑफ फ्रॉम द पेपर द हिंदू। ओके, आगे चलते हैं। इन विच कंट्री दी रामन्ना काली टेंपल इज लोकेटेड। रामन्ना काली टेंपल जिहड़ा है वो किहड़ी कंट्री दे विच हैगा? वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार या इंडोनेशिया। वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन्हां चारां चों किहड़ी कंट्री दे विच आंदा है रामन्ना काली टेंपल? The right answer to this question is Bangladesh। क्यों न्यूज़ दे विच सीगा? क्योंकि रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट हैज इनोग्रेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड रामना काली टेंपल इन रामना, ढाका, बांग्लादेश। सो अपने प्रेसिडेंट साहब ने जिहड़ा है वो इनोग्रेट किया सीगा, दैट्स वाई जिहड़ा है ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रही। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16। Government of Uttar Pradesh has renamed the Jhansi railway station in Jhansi UP as which name? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन या वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने की रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 3-4 महीनों का। जो भी इस तरीके के कोई नाम वगैरह चेंज होंगे है तो वो इंपॉर्टेंट रहते होंगे है। दसो शाबाश की जवाब आएगा? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इजी है, झांसी का नाम होर की रखेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच सिटी हैज बिकम द सिटी विद लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? शंघाई चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, मलेशिया कुलालंपुर या लंदन यूनाइटेड किंगडम।
ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ। 18th number question, who has been appointed as India's next permanent representative, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ambassador ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, to United Nations Conference on Disarmament in Geneva, Switzerland? शिवदास मीना, टी.एस. त्रिमूर्ति, अनुपम रे, नीरज व्यास। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ परमानेंट रिप्रजेंटेटिव या परमानेंट एम्बेसडर कौन बने हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 4 3 2 1 the right answer is अनुपम रे साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the only INS aircraft Indian naval ship aircraft carrier which is serving in Indian Navy presently? INS विराट, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या none of the above? इस टाइम इंडियन नेवी कोलों इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर केड़ा है? ये न्यूज़ ਤਾਂ बनी क्योंकि एक दूसरा एयरक्राफ्ट इंਡੀਜੀਨੀਅਸ तरीके नाल बिल्ड किया जा रहा है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕੰਡ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਲੌਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਦਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। कि वो INS विराट है, कि वो INS विक्रांत है, कि वो INS विक्रमादित्य है या इन्हां तीनां चों कोई भी नहीं है। The right answer to this question is INS विक्रमादित्य। 20th question ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। Recently on which river India and Nepal are building a bridge which will connect these two countries? महाकाली river, घग्गर river, गोमती river या गंडक river? इंडिया ते नेपाल आपस में एक रिवर के उपर ब्रिज बना रहे हैं जिहड़ा कि इंडिया ते नेपाल नूं आपस में कनैक्ट करेगा। किहड़ी रिवर के उपर वो ब्रिज है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। महाकाली रिवर, घग्गर रिवर, गोमती रिवर या गंडक रिवर? किहड़ी वो रिवर है चारां चों जिहड़ी कि इंडिया ते नेपाल आपस में ब्रिज बना रहे हैं? द राइट आंसर इज महाकाली रिवर। ओबवियसली काली रिवर या महाकाली रिवर क्योंकि इंडिया ते नेपाल दे विच जदों जदों बॉर्डर का डिस्प्यूट होंदा है जिहड़ा लीपू लेक के नेड़े ते हो रहा वो आपस दे विच कई वारी चाइना के कहण ते आपस में लड़ पैंदे है तो वो काहदे वास्ते है? इंडिया ते नेपाल दे विच एक नैचुरल बॉर्डर बनता है काली रिवर नाल रिलेटेड। सो इहदा आंसर जिहड़ा है दैट इज महाकाली। सो हुण तक आप हाफ जिहड़ा टेस्ट है वो पूरा कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन आप पूरे कर चुके हैं। सो 20 तक जिहड़े है अगर थोड़े मोर दैन 16 क्वेश्चन आंसर अगर सही हैगे है तो ठीक है, 16 17 अगर 20 आउट ऑफ 20 है दैट इज ब्रिलियंट। अगे चलते हैं, थोड़ा जा रैपिड फायर रहेगा। जिहड़े छोटे क्वेश्चन है कुछ जिहड़े वड्डे क्वेश्चन है उन्हां दी आपां डिटेल भी करांगे। 21st क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पढ़े भारत कैंपेन। पढ़े भारत कैंपेन बारे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट है इट इज अ 365 डेज कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेकंड है इट विल फोकस ऑन चिल्ड्रन स्टडीइंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़े भारत कैंपेन बारे। पढ़े भारत कैंपेन नूं रीसेंट दे विच किहड़े मंत्रालय ने लॉन्च किया, किहड़ी क्लास तो लॉन्च किया? अगर ये तुहानूं डिटेल आंदी है तो यह क्वेश्चन थोड़े लिए बहुत ईजी है क्योंकि दो स्टेटमेंटां यही कुछ पूछ रही हैं। आंसर है 2 ओनली। ये 365 डेज कैंपेन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। हाँ, ये बाल वाटिका तो लैके 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट नूं तक जरूर रखता है। ठीक है। सो अगर आप गल करिए तो यह 365 डे कैंपेन नहीं, ये 100 डे कैंपेन है। ये अपने पंजाब के स्कूलों भी किया गया सीगा 1 जनवरी तो लैके 10 अप्रैल 2022 तक 100 डे रीडिंग कैंपेन सीगा। पढ़े भारत बाल वाटिका तो लैके 8वीं क्लास तक इनू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। Question number 22. Recently, it was found that China is building a new bridge on Pangong Tso. Consider the following statement in this regard. First, the bridge is being constructed more than 20 km east of Finger 8 on the lake's north bank. Second, Pangong Tso
and Endorkic Lake is a 135 kilometer long, of which more than 2/3 is under Chinese control. Choose the correct statement or statements, one only, two only, both one and two, neither one, no two. थोड़ा ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, यूपीएससी ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਸਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਟਸਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਈਸਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूजी स्टेटमेंट कहती है कि जी पैंगोंग सो लेक है ना, ये 135 किलोमीटर लंबी है, जिंदा 2/3 हिस्सा चाइनीज कंट्रोल दे विच आंदा है। तो चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट तुसीं देखनी है कि दोनों स्टेटमेंटां चों दोनों ही गलत हैगी हैं, दोनों सही है या दोनों चों कोई एक सही है। राइट आंसर है दोस्तों दोनों स्टेटमेंट ठीक हैगी है, ठीक है। अगर आप गल करिए तो इस तरह ना फिंगर की होंदी है, इत्थे फिंगर 1 फिंगर 2 इस तरह ये जिहड़ा है ना वो पहाड़ियां मार्क कीतियां हुई हैं। फिंगर मतलब पहाड़ी होंदी है, सो पहाड़ी एक फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 इस तरीके नाल करते हुए इंडिया ते चाइना दा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनती है। ओके, चलो अगे चलते हैं जी। 23rd नंबर क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020, जिन्हों रेड इंक अवार्ड कहते हैं 2020 बाय मुंबई प्रेस क्लब। अनिरुद्ध जगनौत, दानिश सिद्दीकी, बुद्धादेव दास गुप्ता ते लक्ष्मी नंदन बोरा। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2020 जिन्हों रेड इंक अवार्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके नाल भी बन सकता सी कि रेड इंक अवार्ड नूं कौन प्रदान करता है, तो मुंबई प्रेस क्लब देंदे है रेड इंक अवार्ड। 2020 वास्ते जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब किन्ना नूं मिलिया। हुण इत्थे देख के तुहानूं ये लगूगा भी इहदा 1.5 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कई बारी कुछ अवार्ड जिहड़े है वो एक साल 1.5 साल बाद दिते जांदे है। रीसेंट दे विच पिछले 2 महीनों दे विच ये न्यूज़ सीगी कि 2020 वास्ते अवार्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिता गया सीगा। वो दिता गया सी दोस्तों दानिश सिद्दीकी जी नूं। दानिश सिद्दीकी जिन्हां ने आपकी जान गवाई सीगी मतलब जर्नलिज्म करते हुए, सो उन्हां नूं ये अवार्ड दिता गया सी। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान दे विच इन्हां दी जिहड़ी है डेथ हुई सीगी। अगे गल करते हैं जी 24th नंबर, Carlos Papulias passed away recently. He was former president of which country? सर्बिया, ग्रीस, मोंटीनेग्रो, कोसोवो। तो ये भी क्वेश्चन ओब्यूचरी ते है, जिहड़ा देहांत हो जाता है इंटरनेशनल लेवल ते या नैशनल लेवल ते अगर वो पर्सन इंपोर्टेंट होण तो उन्हां बारे क्वेश्चन बन जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल के पर्सन सीगे कार्लोस पापुलियास, इन्हां दा रीसेंट दे विच देहांत होया। तुसीं दसना है कि ये किहड़े देश के फॉर्मर राष्ट्रपति सीगे। सर्बिया दे सीगे, ग्रीस दे सीगे, मोंटीनेग्रो दे सी या कोसोवो दे सीगे। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ग्रीस, जिहदी कैपिटल है एथेंस, जिथे पहले ओलंपिक भी होए सी मॉडर्न ओलंपिक, हुण उत्थे दे ये प्रेजिडेंट सीगे कार्लोस पापुलियास। क्वेश्चन नंबर 25 ते चलदे हां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। भ्रष्टाचार बारे गल करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 बारे दो स्टेटमेंटां दित्तियां गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दैट इज सीपीआई, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है, ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इनू रिलीज किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया का रैंक आया 86th अमंग 180 कंट्रीज इन द करंट इंडेक्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन ओनली टू ओनली, ये मैं सेम ही रखता हूं, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे दियां, वन ओनली टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नो टू। दसो जी केड़ी स्टेटमेंट सही है, केड़ी स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 इनू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। इंडिया का रैंक की सीगा 86 सीगा या कुछ होर सीगा। अगर इंडिया का रैंक 86 सीगा की टोटल कंट्रीज 180 सीगियां या घट वध सीगियां। राइट आंसर इज वन ओनली, पहला तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही करता है, ठीक है। बट इंडिया का जिहड़ा रैंक सीगा वो कितना सीगा, दसो इत्थे पढ़ के दसो। इंडिया का रैंक सीगा 86, जिहड़ा रैंक सी वो 2020 दे विच सीगा, ठीक है। इस बार इंडिया का रैंक सी 85th, एक रैंक जिहड़ा है वो इंप्रूव किया सीगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26, चैंग ई ल्यूनर मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? चैंग ई ल्यूनर मिशन, जापान, इंडिया, यूएस, चाइना। चैंग ई ल्यूनर मिशन किहड़े देश का मिशन सीगा चंद्रमा नूं लैके?
What will be the right answer? The right answer will be China। क्यों क्वेश्चन बनया दोस्तों? ये क्वेश्चन ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਂਗ ਈ ल्यूनर ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰॉकेट ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੂਸਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਖੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਡੈਬਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਚੈਂਗ ਈ ल्यूनर ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ क्वेश्चन बने। आगे चलते हैं 27th नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1947, 1955, 1957, 1960। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कदों बनया सी? क्यों बनया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इस करके बनया क्योंकि आई थिंक अप्रैल की न्यूज़ सीगी है जिंदे च द हिंदू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FTII ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि इनू प्रॉपर तरीके नाल जिहड़ा एडमिशन है वो मिलना चाहिए तां करके FTII वाज इन न्यूज़। सो FTII जिहड़ा है 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। अगर आप इहदी डिटेल करिए तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिंदी एक ब्रांच हैगी है पुणे च, अरुणाचल च भी इहदी दूसरी ब्रांच हैगी है। शेखर कपूर इहदे करंट चेयरपर्सन हैगी है। अज तो 62 साल पहला 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। Who of the following has recently been appointed as the new chairman of UPSC? क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़े कोलों कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नवे चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपॉइंटमेंट्स दे विच, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होंदी है। सो यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? मनोज सोनी, मनोज पांडे, देवाशीष मोहापात्रा या कपिल सिब्बल। किन्हां नूं बनाया गया यूपीएससी के नवे चेयरपर्सन? 5 seconds, 5 4 3 2 1। the right answer is मनोज सोनी जी ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ यूपीएससी ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 29। ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ has been appointed as the vice president of which of the following organization? RBI, New Development Bank, AIIB ਜਾਂ IMF? ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ VP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, 24th ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਸੀਗੇ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 25th ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 24ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਰਜੀਤ ਪਟੇਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ AIIB। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AIIB ਦਾ। ਐਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ AIIB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 30। Chris Morris, who was in news recently, is a famous cricketer from which country? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी लगेगा, कप ऑफ टी लगेगा उन्होंने स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ कि क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं या क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं उन्होंने लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस मॉरिस ਜਿਹੜੇ है वो ਕਿਹੜੀ कंट्री तो बिलोंग करते हैं? सो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिटायरमेंट की घोषणा की सी। क्रिस मॉरिस इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। लास्ट 10 क्वेश्चन से आप चलते हैं। आउट ऑफ 30 आई होप थोड़े 25 तो ऊपर वधिया नंबर जिहड़े है वो आए होंगे। 31st नंबर क्वेश्चन ते चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी अरविंद केजरीवाल या डी किरण बेदी। इनॉग्रल अवार्ड दिता गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इनॉग्रल मतलब पहली बारी दिता गया 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਨੂੰ? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर जी के फादर सीगे दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है, ये भी तुहानू पता होना चाहिए। उन्हों के नाम से ये अवार्ड जिहड़ा है ये दिता गया उन्हों की डेथ एनिवर्सरी के उपर। सो दी राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी। कल्ले इन्हां नूं नहीं, नाल 2-3 कैंडिडेट होर भी सीगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई तुसीं इन्हां दा नाम याद रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी नूं दिता गया।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द फेमस रिवर कृष्णा? महाबलेश्वर, नासिक, गंगोत्री, कैलाश रेंज। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर का उद्गम स्थान केड़ा है? कृष्णा रिवर का ओरिजिन प्लेस केड़ा है? महाबलेश्वर है, नासिक है, गंगोत्री है या कैलाश रेंज है? द राइट आंसर इज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर तो निकल दी है रिवर कृष्णा। 33rd क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया या डी न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ गेमां, कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप है ना, मैं पिछले वाली लैक्चर से तुहानू पूछा सीगा कि किन्ने देशों का समूह है, वो है 54 देशों का समूह है कॉमनवेल्थ। वो देश जिहड़े कदे ना कदे क्वीन जिहड़ी है इंग्लैंड की क्वीन उनके अंडर रहे है, जिवें इंडिया हो गया, आस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कैनेडा हो गया, तो ये जिहड़े सारे देश है कॉमनवेल्थ नेशंस हैगे है। इन्हां ने एक समूह बनाया आपदा 1950s दे विच, उन्हां दे विच 54 नेशन हैगे है, ये आपस दे विच गेम्स भी खेलते हैं जिन्हां नूं कॉमनवेल्थ गेमां कहते हैं, राष्ट्र मंडल खेला कहते हैं। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ गेमां का वेन्यू 2026 केड़ा होएगा? मैं 2022 का नहीं पूछा, 2022 का भी क्वेश्चन बन सकता है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का वेन्यू रीसेंट दे विच ही जिहड़ा है वो डिक्लेयर होया सी अप्रैल मंथ दे विच। सो तुसीं दसना है कि वेन्यू केड़ा है। वो वेन्यू है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दे विच एक स्टेट है विक्टोरिया, स्टेट ऑफ विक्टोरिया, उत्थे ये जिहड़ियां गेम्स है ये होणगियां। एक चीज ध्यान रखना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 올림픽 ਦੇ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਪਿਛਲਾ 올림픽 ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ 올림픽 ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਨਿਊ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵੈਨਿਊ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1930 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2026 ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आगे चलते हैं। इंडिया एंड साउथ कोरिया साइंड CEPA इन विच ईयर? 2001, 2009, 2016, 2021। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लेट शुरू होया सीगा, तुहानू किते लगे कि सर तुसीं तां 1950s कह रहे सी, कॉमनवेल्थ गेम्स पहलां तो चल रही सी। इंडिया एंड साउथ कोरिया साइंड CEPA, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। CEPA इंडिया ने साउथ कोरिया नाल किहड़े साल साइन किया सीगा? क्वेश्चन बनिया क्योंकि रीसेंट दे विच ऐसे साल इंडिया ने UAE दे नाल बड़ा ही एक फास्ट ट्रैक माध्यम दे विच CEPA साइन किया है। वो वाला इन्ना जल्दी किसी भी दो देशों दे विच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होया जिन्ना जल्दी इंडिया ते UAE ने तकरीबन 45 दिनों के विच ही ये सारा साइन कर लिया। सो इत्थे क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने CEPA इंडिया का किन्ने किन्ने नाल साइंड है? जापान नाल है, साउथ कोरिया नाल है ते हुण UAE नाल भी हो गया। इंडिया ने साउथ कोरिया नाल CEPA कदों साइन किया? वो साइन किया दोस्तों 2009 दे विच। CEPA की फुल फॉर्म सुन लो, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 35th नंबर क्वेश्चन देख दिया। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड अ सेरेमनी टू ऑनर द सर्विसेज ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर। इट वाज इंडक्टेड टू इंडियन एयरफोर्स इन विच ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेतक हेलीकॉप्टर रिसेंट दे विच न्यूज़ दे विच सीगा। इंडियन एयरफोर्स ने एक सैरेमनी दे विच इनू ऑनर किया। उत्थे राजनाथ सिंह जी ने जिहड़े अपने रक्षा मंत्री हैगे है उन्होंने कहा कि चेतक हेलीकॉप्टर ने सिर्फ युद्ध दे विच ही नहीं ईवन लोगों की मानवता की सेवा दे विच बहुत बड़ा जिहड़ा योगदान दिता है, फिर चाहे वो कोविड-19 का टाइम ही क्यों ना होवे। चेतक हेलीकॉप्टर नू इंडियन एयरफोर्स दे विच किहड़े साल इंडक्ट किया गया सी? 1948, 1954, 1962 या 1965? क्वेश्चन नंबर 35th। The right answer is 1962। जो इंडो-चीनो वार या इंडो चाइना वॉर होया सीगा ना, उदों इनू इंडक्ट किया गया सी चेतक हेलीकॉप्टर। 36 नंबर क्वेश्चन। Recently 4th edition of India Boat and Marine Show was organized in which of the following city of India? कोची, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? 4th edition of India Boat and Marine Show किहड़ी सिटी दे विच होया? ये होया दोस्तों कोची दे विच। कोची इज दी राइट आंसर, केरल। क्वेश्चन नंबर 37। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज लोकेटेड?
गुरुग्राम, जिनेवा, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इट इज लोकेटेड इन डी न्यूयॉर्क। अगर आप बाकी की गल करिए दोस्तों, याद रखना है ਜਿਹੜੀਆਂ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिर्फ दो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हों का हैडकुआटर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ है। वन ऑफ them is इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिनका हैडकुआटर है गुरुग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। एक हैगी है कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ਜਿਹੜਾ हैडकुआटर है वो है न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों का हैडकुआटर इंडिया के विच है। बाकी जिनेवा के विच तां बहुत सारे हैडकुआटर है, चाहे वो वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होवे, चाहे WHO होवे, काफ़ी हैडकुआटर जिनेवा के विच है। वाशिंगटन की गल करिए तो पैसे वाला महकमा सारा वाशिंगटन के विच है। सो याद रखना है वर्ल्ड बैंक, IMF, ये दोनों का हैडकुआटर वाशिंगटन के विच है। 38th नंबर क्वेश्चन करते हैं। Australian women team has won the recent edition of Women's Cricket World Cup. How many times this team has won the Women's Cricket World Cup in history? 5, 6, 7, 8। रिसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की आप गल कर रहे हैं। आस्ट्रेलिया टीम कितनी बारी जीती हुई है? 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी या 8 बारी? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7th टाइम। अगर तुहानू होर होवे तो फर्स्ट कदों होया सीगा 1973 दे विच क्रिकेट वर्ल्ड कप, वीमेन दा क्रिकेट वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन जिहड़ा होया सीगा वो 1973 दे विच होया सीगा, ते जिहड़ा 2022 दे विच एडिशन होया है वो होया दोस्तों 12वां एडिशन, 12th एडिशन जिहड़ा है वो होया, यानी कि 12 चों 7 वारी आस्ट्रेलिया जिते है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। 39th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मिशन नेम्ड एज स्कूल चलो अभियान? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। स्कूल चलो अभियान। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना ये 39th नंबर क्वेश्चन। स्कूल चलो अभियान केड़ी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने रिसेंट दे विच लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों सी, दैट इज उत्तर प्रदेश विल बी दी राइट आंसर। सो आज दी लास्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री नेम्ड एज इजराइल? डाइट, नेशनल असेंबली, कांग्रेस या नेसेट? इजराइल नाम की कंट्री उनकी पार्लीमेंट का की नेम है? रिसेंट दे विच इत्थे सत्ता पलट हुई सी, तख्ता पलट होया सीगा। सो अगर आप गल करिए तो इजराइल की पार्लीमेंट का नाम की है? डाइट है, नेशनल असेंबली है, कांग्रेस है या नेसेट है? तो द राइट आंसर इज डी, दैट इज नेसेट। अगर आप बाकी ऑप्शन की गल करिए, डाइट है दोस्तों जापान की पार्लीमेंट का नाम, नैशनल असैंबली है पाकिस्तान की पार्लीमेंट का नाम, इत्थे भी तख्ता पलट होया है, ठीक है। तो कांग्रेस जिहड़ी है वो US दे विच कहंदे हैं, ओके। तो नेसेट कहंदे हैं इजराइल दे विच। सो ओके फ्रेंड्स, कमेंट योर स्कोर इन दी कमेंट बॉक्स। तो जिहड़े ऐप ते सुन रहे हो वो मैनू भेज सकते हो कि तुहाडे किन्ने मार्क्स इहदे विच आए हैगे है, ठीक है। सो इस तो बाद अगर आप कहिए कि 2 सैशन मेन सीगे, सो पार्ट नंबर 2 भी आप इत्थे कर लिया। टाइम लग्या तो एक दा जिहड़ा यानी कि होर है तां भी ले आवांगे, बाकी डिपेंड करता है तुसीं किन्ना लाइक ते कमेंट करदे हो, ठीक है। अगर होर भी इस तरह के सैशन चाहिए है तो तुसीं कमेंट दे विच लिख सकते हो, दैन उस तरीके नाल मैं टाइम जिहड़ा है स्पेयर कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी जी फीडबैक है वो मोस्ट वेलकम है। बाकी जो ऐप के लैक्चर होंगे है उन्हें डेली बेसिस से जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि हर लैक्चर के आपां डेली बेसिस से करते हैं प्रैक्टिस MCQ, फिर जिन्नियां भी न्यूज़ होंदियां उन्होंने सैगमेंट वाइज इस तरीके नाल कीता जांदा है। डेली 1 घंटे का लैक्चर करंट अफेयर का ऐप के आंदा है। सो अगर कोई इसनूं अवेल करना चाहता हो तो रेस अकैडमी ऑफिशियल ऐप पर कर सकता है, या जो ऑफिशियल नंबर है उस पर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थोड़ी फीडबैक मैनू जरूर कमेंट बॉक्स के लिखो ताकि मैनू भी पता लगे कि मेरे की कमी है, या कोई भी अगर कोई तुसीं कुछ भी कहना चाहते हो, चाहे वो मोटिवेशन हो या कोई भी डीमोटिवेट करना चाहते हो तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुसीं कमी दसो, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर के। थैंक यू।